السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے دانشور صاحب. کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک ہوں، لیکن ذرا سردی کی وجہ سے اکڑوں ہو کے بیٹھا ہوں. کراچیوں 3 سال سے پہنچے نہیں. ٹھنڈ بہت زیادہ ہوگی. تو ہند سی حیدرآباد تو پڑھیں کدھر مڑ گئے سی. 1967 میں ایک روز میں اور قاضی واجد بازار گئے. اچھا جی. ہم نے جرسی خریدنی تھی. آپ نے؟ دونوں نے. یعنی دونوں پہنا کرتے تھے؟ نہیں، ایٹ اے ٹائم تو ایک ہی پہن سکتا ہے. آپ پاگل تو نہیں؟ آپ سے کوئی بعید نہیں ہے. آپ سنتے نہیں ہیں بات. اچھا جی. در حقیقت قاضی واجد نے ہی خریدنی تھی. اچھا، تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہم دونوں نے خریدی؟ ہم تو اس انتظار میں رہتے تھے کہ ایک نہ ایک دن قاضی صاحب کو اس فانی دنیا سے جانا. تو ہم نے جرسی خریدی. ٹھیک. گلا ذرا تنگ تھا. گلا تنگ تھا؟ جی. واہ. بلکہ کافی تنگ تھا. ہم نے ایک پلمبر بلایا. اچھا. انہوں نے پورا آیا. پلمبر سے گلا کھلوانا تھا، اس کو جرسی نہیں پہنا دی. جرسی تنگ لے بیٹھے نے ہن بیچ رہے. پھر ہم نے ایک خرادیہ بھی بلایا. اچھا، تاکہ وہ گلا کھول دے. جی، مگر کچھ فرق نہیں پڑا. واہ. آخر ہم نے گلا کاٹ دیا. جرسی کا؟ نہیں، قاضی صاحب. ایک کریٹو آدمی کبھی ویلا نہیں ہوتا اور ہمیشہ رہتا ہے. کریٹو آدمی ہمیشہ رہتا ہے. جی. کل بھی بھٹو زندہ تھا. ہمارا ایک گروپ ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے سر، وہ 50,000 دفعہ بتا چکے ہیں. اب تو یہاں کے در و دیوار کو بھی پتہ چل چکا ہے. اس میں دردانہ بٹ تھی، قاضی واجد تھے، اس میں راحت کاظمی تھے، ضیاء محی الدین صاحب تھے. ایک روز قاضی واجد کے ابا نے ہمیں وال کلاک خریدنے کے لیے بازار بھیجا. اچھا. بازار پہنچے. وال کلاک وہ جو ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے وہ والی وہ وال کلاک جو ٹیبل پر رکھی جاتی ہے وہ ٹائم پیس ہوتا ہے سر. آپ کو کیا ہو گیا؟ قاضی واجد کو وہ وال کلاک چاہیے تھی جو ٹیبل پہ رکھی ہوئی. وہ لینے کے لیے ہم سولجر بازار کراچی گئے. سر ٹھیک ہے، سولجر بازار اب اس کام کے لیے مشہور نہیں، وہ زیب النساء سٹریٹ ہے. آپ وہاں پر بھی دریاں بیچتے رہے؟ اس کو نہیں پتا زیب النساء سٹریٹ کا؟ میں کہ پتہ نہیں کہتی کس کو نہیں پتا، میں بیچتا. وال کلاک لینے ہم وہاں چلے گئے. پیسے کچھ شارٹ تھے آبویسلی. 35 روپے پوچھا تو اس کی قیمت پتہ. قاضی صاحب کام آئے ہوں گے؟ نہیں، ان کی بائیں آنکھ کام. وہ بیچ دی آپ نے؟ جی. قاضی واجد کھمبیاں جو بج رہے ہیں. ایک چیز ہے. چاچے چھیتی بول پو. صادق دیکھ میرا بھائی بات کرنے دے. وہ آپ کا بھائی کس طرف سے ہو گیا؟ چلے زیادہ زیادہ بہن ہو سکتی ہے آپ. بھائی صادق جیسے بندے کراچی میں بھتے لے رہے. سر انہاں دے انٹرویو کرن تو اچھا ہے، مطلب تو عام. سر سنا بارش میں آپ کی بے قراری بڑھ جاتی ہے. بہت زیادہ. بارشیں کیا خوب ہوا کرتی تھی اور کیا خوب ہم انجوائے کیا کرتے تھے. آگے کچھ رسپانس دیں، لاش بن کے نہ بیٹھیں. اچھا جی. شدید بارش، گرم گرم سموسے، تمام دوستوں کو ٹیلی فون پہ واہ بیچا کرتے تھے. ایسے ہی ایک بارش کے روز ہم تمام دوست ساحل سمندر پہ واک کر رہے تھے. واہ. اچانک ایک طوفانی لہر آئی. ٹھیک. اور
काजी साहब को चलो लेटू। काजी साहब को ले लूं। मत पूछिए, हम पर बिजलियां गिरी। ऑब्वियस दोस्त थे आपके। नहीं, हमारा जरिया माश थे। बहुत रोए हम सब, बहुत। क्यों रोए क्यों? भाई करोड़ों का असासा थे वो, लाख लाख रुपए का तो खाली एक गुर्दा था उनका। और हम तो रो ही रहे थे, चाय वाला भी रो रहा था। चाय वाला तो वो क्यों रो रहा था? इसलिए कि वो जानता था कि ये काजी साहब ने उसके पैसे डूबे। एक हमारा दौर था, प्यारे प्यारे शॉर्ट प्लेज आया करते थे। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਪ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या सर, क्या कहना क्या चाह रहे मुझे बताएं। अब वो चीज आपको दिखाई नहीं देती, जैसे आपके पास वो ਪਲਾਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं नेल कटर मांगते पे ने। मग मग आपका ये पड़ा सर। नहीं, वो ਛੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਛੈਣੀ। यार नहीं, ਕਤੀਰਾ ਕਤੀਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਮਾ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। जैसे वो ਬਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਬਲਬ। नहीं यार, वो थोड़ा ਫੱਕੀ ਫੱਕੀ ਜੀ। एक वो अच्छा भी जो ये पूछेगा ना मैं उसे इनाम दूंगा। ਅੱਛਾ ਜੀ। अगर मैं बूझ जाऊं। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद नजरात जुबानो बयान में आज पहला लफ्ज है खामंद। ਸਰ ਖਾਮਦ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी खामंद सही है, लेकिन इसकी तारीख बड़ी दिलचस्प है। अच्छा जी। ये तुर्क हुक्मरान थे ना खिलाफत उस्मानिया में, वो अपना लकब रख लिया करते थे खामंद शाह। वाह 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 वाह। अब खामंद का मतलब शौहर हरगिज नहीं है, खामंद का मतलब है सरबराह, सरदार, अमीर, रहनुमा। और ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, जैसे खुदावंद, ये खुदावंद का एब्रीवेशन है खामंद। अच्छा। और खुदावंद दो अल्फाज का मुरक्कब है। खुदा का मतलब तो मालिक, और वंद का मतलब है जैसा। अच्छा। कि मालिक जैसा, अमीर जैसा, बादशाह जैसा तशबीह है ये। वाह जी वाह। खुदा जो होता है मतलब कश्ती का ना खुदा, कश्ती का मालिक, इसी तरह खावंद जो है वो बादशाह जैसा। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡਾ ਖਾਮਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨ ਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਖਾਮਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਖਾਮਦ ਸਨ, ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਖਾਮਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਰੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਾਮਦ ਬਣਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ये और किनू किनू खामद कहते हैं जी? सर खामंद शाह, देखो ना कितना अजीब है टाइटल अपने लिए, तुर्क हुक्मरान खामंद शाह। खामद शाह रंगीला। सर ये कौन साहब है? ये उस्मानी खुलफा में से ना, ये अपने आप को खामंद शाह कहते थे। पहले गौर न सुनिया कर जो कह रहे होते हैं। है सादिक शाह। अच्छा जी, हुण खामद नु की कहना है? मैंने कहा ना खामंद शौहर नहीं होता। सर आहिस्ता बोलो, तलाक करानी जी। ਖਾਮਦ ਕੀ ਖਰਾਦੀਆ ਹੁੰਦਾ? ये जो खामद है ये उस दौर में अपनाया गया था जब औरत को प्रॉपर्टी समझते थे। वैसे तो अब भी प्रॉपर्टी समझा जाता है, और यहीं से मिजाजी खुदा का कॉन्सेप्ट आया था। सारा जेड़ा साडा अब्बा है, हाँ जी, मेरी अम्मी दा खामद, हाँ जी, ओनू की कहना सी? अब्बा कहो उसे। नहीं अम्मी की कह ते जे ना कॉन्फिडेंस आए ते की? मास्टर जी ने लगता कोई बूटे खराब कर गए। मेरे नाल ना बदतमीजी कीती करो। क्यों जी, तुसी पीर हो? आओ पीर ही हो गए, 2 मलंग बिठाए। मलंग से याद आया, अगला लफ्ज है दरवेश। आहा दरवेश। वाह जी वाह। ये असल तलफ्फुज जो है वो दरवीश है।
درویش درویش درویشاں دے ہاتھ نہیں دیکھا بڑا بڑا پارا ویش ویز سے نکلا ہے، ویز سے. یہ درویز تھا، درویز، در دروازہ، ویز لٹکا ہوا، جو دروازے کے ساتھ ہی لٹکا رہتا ہے. جو بزرگ باہر نہیں بیٹھا کرتے گھر کے باہر. درویش یہ ایٹیمالوجی ہے، بڑی دلچسپ ہے. یہ اس کا آغاز، اس کی تاریخ ہے کہ لفظ کیسے در آویز، در ویز، آویزے نہیں ہوتے یہ لٹکے ہوئے. تو ویش جو ہے وہ ویز سے، در ویز، در ویش. اور پھر کچھ ایسے جو فقیر صفت لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے رہیں، آپ نے کھانا دے دیا نہیں دیا نہ سے، بڑے مطلب اسی لیے درویش صفت کہتے ہیں نا. فقیر صفت لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عمدہ لوگ ہوتے ہیں. کیا بات. اور اس اسلوب کو اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جو یہ جتنے بھی میٹیریلزم کے خلاف لوگ ہوتے ہیں یہ درویش ہوتے ہیں. میں تے جگتا لالا پھٹڑ کیتا ہوندا انہاں. یہ جیو دا درویش ہے جی. اچھا انہوں مین دروازے سے پھانسی لگی. اس کا کیا مطلب یار؟ سارا لٹکا ہوتا ہے نا. ماسٹر بھی آج لمکے ہوئے گا یار فضول بات ہے. ماسٹر جی انتہائی پیارے کیریکٹر ہیں ہمارے شو کے. یہ لٹکے ہوئے پیارے لگے. ماسٹر جی لمکے کیہو جے لگن گے؟ لگے گا بلی نو پھانسی لگی. پر سر میری سوئی اجے تک درویش تے اڑی ہوئی ہے. کس پہ؟ درویش جڑی دعا قبول ہونی وہ بھی نہ ہو. وہ مینوں تے لمحہ پا کسے درویش نو کہیے درویش، وہ کہے مینوں مذاق کیتا ہے نے، باقی ملانگے سانو ٹھا لین ہوتے. اور فقیراں کو تے ڈنڈے بھی اڑے اڑے ہوندے نے، اللہ معافی دے. اور فقیراں کو صرف ہوندا ہی ڈنڈا ہے. یہ اس لیے کہ فارسی زبان کا جو اسلوب ہے تہاڈی یہ فارسی سانو پڑھوائے گی. اس میں ویش نہیں ہوتا، ویش ہوتا ہے. جیب نہیں ہوتا، یا جیب ہوتا ہے یا جیب ہوتی ہے. اسی طرح جیسے زیب ہے، ہم اس کو زیب کہتے ہیں، یہ زیب ہے. سیب نہیں ہے، سیب ہے. ہیلو. اور یہ خوشامدید نہیں، خوشامدید ہے. پھر تسی کیوں خوش آمدید کہندے ہو سر؟ میں اس لیے خوشامدید کہتا ہوں. میں سیب کیوں نہیں کہتا، میں جیب کیوں نہیں کہتا؟ تے سانو مار پوانی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ میں خوشامدید کیوں کہتا ہوں. یہ بعض اوزان ایسے ہیں، بعض الفاظ ایسے ہیں جو اردوائز ہو چکے ہیں. انڈیا پاکستان میں ان کا جو تلفظ ہے وہ نہیں ہے جو ایران میں ہے. تو اس لیے اب مستعمل جو ہے وہی، اور خوشامدید کی بجائے خوشامدید کہیں زیادہ خوبصورت لگتا ہے. سر تہاڈی مہربانی قبرستان چوں نکلو، اج کوئی اور لفظ نہیں گا. آج ایک اور لفظ ویسے ہی ہے. اگلا لفظ ہے درگاہ. ہیلو جی. ٹھیک ہے، چنگی گل ہے درگاہ. اچھا مینوں ماسٹر مردہ لگن دیا. یہ دراصل درویش گاہ ہے. درویش گاہ. ہاں جی، درویش گاہ ایسی جگہ جو ویسے تو دروازے کی جگہ ہے نا. درگاہ یعنی وہ جگہ جہاں دروازہ ہو. وہ دروازہ جہاں درویش بیٹھتے ہیں آ کے. تو بیسیکلی یہ درویش گاہ تھی جو درگاہ بن گئی، اس کو ایبریویٹ کر دیا گیا. پھر ہے لفظ داروغہ. آج سارے در یہ کچھ در و گاہ، یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، دروازہ اور جگہ، یعنی گھر بار. دروغہ تے سپاہی نو سمجھنے جی. وہ بعد میں بن گیا نا داروغہ والا. اس کو پتا داروغہ والا کیوں کہتے ہیں؟ داروغہ والا ہمارے یہاں علاقہ جو ہے جی وہ داروغہ نہیں ہے، داروغہ والا ہے. کیوں کہتے ہیں سر؟ اس لیے کہ داروغہ والا یعنی جس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی. پولیس کو داروغہ، پھر اس کے افسر کو داروغہ، وہ داروغہ والا تھا. دروازہ، گاہ، دروازہ اور جگہ، اس کا محافظ، یہ محافظ کے لیے استعمال ہوتا تھا. اے پاس تک بھی پہلے دروگا سی جی. ہاں جی، ٹرک تے ہن چلاؤن لگا جی. اچھا سر وہ آج شعر تو سنا ہے کوئی اچھا سا؟ شعر ہمیشہ اچھا نہیں سناتا میں. نہیں اچھا سناتے ذرا، آج زیادہ اچھا آج میں فراق گورکھپوری کا شعر سناتا ہوں. واہ واہ واہ. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، ہم سے کیا ہو سکا محبت میں، تم نے تو خیر بے وفائی کی. تو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک.
खुद हजरात, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कौम के बारे में यह तासुर मशहूर है कि हम बला के सुस्त और काहिल हैं। बतौर कौम हमसे ज्यादा सुस्तल वजूद कौम दुनिया में मौजूद ही कोई नहीं है। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दे रखी है सबा परवेज साहबा को। आप माहिर नफ्सियात हैं जी, ये बताइए कि हमारे बारे में ये सब कुछ क्यों कहा जाए? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो थ्रू आउट हमें नर्चर कर रहे होते हैं कि हम आखिरकार जाके कोई एक हैबिट को अपना लें। जैसा कि अगर आप काम चोरी और काहिली के पीछे, जिसको मोस्टली बहुत सारी लैंग्वेजेस में डिफरेंट अजीब अजीब नामों से भी पुकारा जाता है, तो उसके मैं चाहूंगा आप वो अजीब अजीब नाम लें। उसमें लेजीनेस का, स्लॉथीनेस का, इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन का वर्ड यूज होता है। पंजाबी में हड हराम का, कामचोर का लफ्ज भी इसके अंदर इस्तेमाल होता है। पंजाबी का हुस्न देख रही हैं, जो लुत्फ हड हराम में है वो स्लॉथीनेस में, स्लगिशनेस में, लेजीनेस में कहाँ है? अशफाक अहमद साहब अल्लाह गरी के रहमत करे कहते थे कि जितना मर्जी तुम लफ्ज एक्सीडेंट, तसादम, टकराव इस्तेमाल कर लो, जो लुत्फ इट खड़का में है वो किसी और लफ्ज में नहीं हो सकता। जब तक वो स्किल्स, जिनको आमतौर पे एग्जीक्यूटिव स्किल्स कहा जाता है, वो डेवलप नहीं होती, हम वो स्किल्स अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल टीचर्स, अपने एजुकेटर्स और जो भी मेंटोर्स हैं बेसिकली, हम उनसे ये बोरो करके लेते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें ये चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं कि जी बच्चे नहीं, आप ना करो। माएँ बच्चों को खुद खाने ला के देती हैं। इवन के आम केसेस में रिपोर्ट किया जाता है 12-12 साल के बच्चे को मदर्स नहला भी रही होती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चा थ्रू आउट ये चीज़ सीख लेता है और अल्टीमेटली एक वक्त पेरेंट्स के ऊपर ऐसा आता है कि बच्चे को अगर पेरेंट्स ये डिमांड करें कि जी आप अपने बाल कटवा लें, तो उसके लिए भी वो कहते हैं कि इसके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। यानी कि एक तो मैं हजामत कराऊंगा, लेकिन उसके लिए फिर मुझे कुछ लगाए, आप मुझे कुछ मुआवजा दें इसके बारे में। हाँ जी, नाई नूं भी दियो सी ओनू भी दियो। इस तरह तो फिर टेंट लाख रुपए च पै जांदे। ये सारा कुछ उर्दू में नहीं हो सकता सर। टेंट की उर्दू क्या होती है? टेंट उर्दू का लफ्ज है, कभी नहीं सुना? उसकी टेंट कर दी गई। जी जी, उसके मेरे सामने हुई है। अच्छा, किस तरह हुई थी? सर ने मस्जिद च क्लॉक लाया सी। वो तो मन्निया नहीं, कहना मैं टाइम सेट कर रहा जी पीछे। अच्छा जी, आप मोअज़्ज़ज़ मेहमान को बात करने दीजिए। जी तो सर मैं ये कह रहा था। और तुम मोअज़्ज़ज़ किधर से हो गए? वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने, तू तो इत्थे धक्के खाना रहो। जी अब बात जैसे पेरेंटिंग से स्टार्ट हुई है, तो वो खाली पेरेंटिंग पे ख़त्म नहीं हो जाती, ये बिहेवियर डेवलप होता होता आगे बढ़ जाता है। और एज ए नेशन आज हम सबकी थ्रू आउट, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक ये सोच बन गई है कि जी मगरबी कौम अगर सादा जिंदगी गुजारे, न्यू ईयर पे पैसे खर्च ना करे या अपनी अयाशियों पे ना उड़ाए और वो सारा पैसा हमें दे दे, तो पाकिस्तान के हालात तो वैसे ही बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि माइंड सेट ये है कि हम डिपेंड करने लग गए हैं। पैरासाइट मेंटालिटी है, Exactly. वो रगो पै में सरायत कर चुकी है। हम लोग बल्कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो मगरबी ममालिक हैं, उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि जी इन्हों दे कारदा बच्चा कमांदा है। प्लीज उर्दू पे। बड़ी अच्छी बात है, उन्हें कर लेने दो ना। सर उन्होंने भी कहो ना, ये छोटा साढ़े से एक फिक्रा, उन्होंने सिर्फ एक फिक्रा कहा है, तुम एक फिक्रा उर्दू का बोलते हो। जी मैं इसको उर्दू में कर जी नहीं, आप क्यों बोल रही हैं? आप क्यों असर ले रही हैं इनका? बाजी आप बात करें, असी तो भांडा। जी तो आमतौर पर हमारी ये मेंटेलिटी बन गई कि जी हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को देखें तो इनडायरेक्टली हमारा कल्चर ये प्रमोट कर रहा है कि घर में 10 खाने वाले हैं और 1 कमाने वाला है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग शेयर नहीं करते, और एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करते, और उसके बाद जो बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है वो इसी माइंडसेट के ऊपर हो रही है कि जैसे ये एक बंदा जो कमा रहा है, ये इसी की जिम्मेदारी है कि ये तमाम चीजें हमारी पूरी करे। वैसे कितने जुल्म की बात है सबा परवेज साहबा, आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसे आप क्या कहेंगी? ये भी इट्स ऑल अबाउट बेसिकली द ट्रेनिंग। जो पीछे से एक ट्रेनिंग आ रही है कि बाप आमतौर पर बच्चों को ये कहते सुने गए हैं कि जदों तक मैं जिंदा हुआ तानू कुछ करने की लोड़ नहीं। वो बच्चे अपने जहन में ये बात बिठा लेते हैं कि जब तक मेरे वालिद साहब मेरे सर पे हयात हैं तब तक मैं किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं। अच्छा, सारे फजूल से डिक्टम पंजाब में ही क्यों है? मतलब है कोई चीज पश्तो में भी कही जाती होगी, सिंधी सारे पास ही है, लेकिन मशहूर असी हुए हैं। मतलब यानी अच्छा, उसकी एक वजह मेरा ख्याल है ये हमारा जागीरदाराना बैकग्राउंड है। हम देखते हैं ना बादशाहों को, ये बादशाहों की सरजमीन थी, फिर जागीरदारों की जो बादशाह के टोडी हुआ करते थे, और चूंकि बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी थी, ये बहुत अमीर सोसाइटी थी, दरियाओं का मीठा पानी, सरसब्ज व शादाब जरखेज जमीन, और जिसकी बिना पर पैसे की फरावानी थी,
تو जागीरदारी पनपती है ऐसी सूरत हाल में। ਆੜੂ ਗਰਨੇਟ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਇਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਹੀ जी हमारे यहाँ के नौजवानों में अब शॉर्टकट जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, जैसा कि ये प्रीचर्स के पास जाना, ये जो बाबाओं के पास, आमिलों के पास जाना कि जी तुसी दुआ करो, असी कुछ नहीं करना, हाय हमने बैठना है, हमने काम नहीं करना, आप दुआ करें। और फिर इस बिलीफ सिस्टम को प्रमोट करना कि जी हमारे अकीदे में ये चीज शामिल है कि पैसा हाथ की मैल है, आता जाता रहता है, हम अपनी गलतियों और अपनी कोताहियों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। वो एक लतीफा याद आ गया, एक आम सी बात है, ज़रबुल मसल बन चुका है कि एक स्टूडेंट इम्तिहान में फेल हो गया, तो उसके बाप ने उसे पूछा कि ये तुम क्या करके आए? उन्होंने कहा जी मैं क्या करता, मेरे आगे और पीछे दोनों नालायक बैठे हुए, मैं पास कैसे होता? अच्छा, बच्चे का नाम शायद आपने एहतियातन लिया है। इसका क्या मतलब? हंस क्यों रहे हैं? लोगों को बहुत शौक है, ये जो साहिब सरबत लोग हैं, ये बड़ा महंगा कुत्ता खरीद लेते हैं, छोटा सा पप, और इन्हें एक लफ्ज नहीं आता कि कुत्ते की निगहदाश्त किस तरह करनी है, उसको ट्रेनिंग किस तरह करनी है। एग्जैक्टली यही हाल अक्सर घरों में बच्चों के साथ किया जाता है। बच्चे का शौक किसे नहीं होता, चूम चूम के उसको मार देते हैं, उसको एग्जेक्टिव ट्रेनिंग नहीं देते, वो जो फाइन मूवमेंट होती है वो नहीं उसको सिखाते, और अल्टीमेटली वो जब 12-14 साल का होता है तो वो इस माइंड सेट के साथ होता है, मैं घर दाखिल हुआ, मैं किससे कहूं कि वो मुझे फ्रिज से पानी लाकर। भाई तुम जिस तरह से दाखिल हुए हो उसी मोमेंटम से जाओ और फ्रिज से पानी निकाल लो, पहले बैठेंगे, इसलिए कि उसने बाप की नकल करनी, बाप यही करता है। नजीब मास्टर जी आप कुछ कह रहे हैं? जिस मुआशरे में मेहनत का अजर ते उजरत दोनों ना मिलन, उत्थे ये सुस्ती और काहली ना पैदा होवे तो होर की हो। ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਆਬਦ ਫਰੂਕ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ बैठना मना है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बात ये है कि मैंने आज तक जितना भी काम किया है 3-4 बजे के बाद ही शुरू किया है और सोया रहता हूँ। एक तो ये है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, और जब मैं उठता हूँ तो फिर सो जाता हूँ। तो मैं अक्सर 1 से 2 बजे से पहले नहीं उठता, और काम मेरा जो होता है जब मैं उठता हूँ तो काम मेरा ऑटोमेटिक हो गया होता है। मैनू कसम चुकवा लो पाहन अजय भी सोते और सच्ची बात है, मौजें ही लगी हुई हैं। बड़ा ही करम है कि मैं सोने से जब सोया होता तो मेरी रोजी बन जाती है, तो मुझे क्या इतनी मेहनत करने की जरूरत है? वाह जी वाह, सुते आप अगर मेहनत कर सकते हैं जितनी आपकी जरूरत है, अल्लाह ताला बड़े इत्मीनान से आपको दे देता है, सुकून से कमाते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह बड़े ठीक ठाक सेहतमंद हैं। आप अगर 5,000 रुपए को काफी समझते हैं तो कमाकर वापस आने की बजाय आप 7,000 कमाइए और वो 2,000 किसी को दे दीजिए। दे तो देन, उन्होंने आंख नहीं खुलती हर वेले पे सुस्ती इतनी है कि किसी का ख्याल नहीं है। सच्ची बात है, मैं पाकिस्तान में वाहिद बंदा हूँ जिहड़ा सोता रहता है। तो मुझे बताइए आप करते क्या है? चोकर बेचता हूँ जो उनका निकलता है। अच्छा, तो ये सोए होता है ये काम? और हाँ, ये सिर्फ मैं ही बेचता हूँ और कोई बेच ही नहीं सकता। आए उठते ने ते वेच। तो बात ये है कि ये जो मेरा काम है ये लेते हैं ग्वाले वगैरह, तो उनको भी इतनी होश नहीं होती। और ये जो मेरे से ये सारे आप ये ਤੁਹਾਡੇ इर्द गिर्द सारे टोन लोग ये आप किसी अफ्यूनपुरा तो नहीं रहते कि सारों को होश नहीं होती, सारे टोन फिरते? जितने भी इंडस्ट्री फ्लोर मिल वाले हैं वो आते ही सुस्ती की वजह से 1-2 बजे के बाद ही तो फ्लोर मिल वाले भी सोते रहते। लेट ही आते हैं। 1 बजे वो जो लंच का टाइम है वो इनका नाश्ता है, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहता है। 1 बजे उठते हैं और 1:15 पे फिर सो जाते हैं। और जेड़ा मजदूरी कर रहे होंगे इसे वास्ते तो जी उन्हें लभदा कुछ नहीं जी। इससे नुकसान पता क्या होता है? इससे नुकसान ये है कि ये जो बिजली के ये जो तवानाई का क्राइसिस है कि आप 8 बजे शोरूम्स बंद करें, दुकानें बंद करें ताकि सुख का सांस ले, आप जाते ही लेट है और सारी रात फिर ऑन रहता है सिलसिला, सार्फिन को प्रॉब्लम होता है। जी मैं अपना 2-4 काम करता हूँ और फिर मैं अपने मस्ती में और सुस्ती में लेट जाता हूँ। ये अच्छा पाए ना, हर काम तो बाद उसे लेट की वेलकम बैक जी। एक खबर के मुताबिक मलिका बरतानिया बकिंगम पैलेस में मौजूद खुश्क मेवों के मर्तबानों पर निशान लगा के रखती हैं
क्योंकि अक्सर ड्यूटी एहलकार उनमें हाथ डालकर मेवे खा जाते हैं। ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ੋਧੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ वैसे आपस की गल है जिन्नी उत्ते ठंड पैंदी है ना उन्होंने चोरी नहीं करना ते होर की करना ड्राई फ्रूट। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਤਿਆਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अब तो वो ग्राउंड हो गया है। कॉन्कॉर्ड की बड़ी आवाज थी। ਅੱਛਾ ਜੀ कॉन्कॉर्ड ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਡੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੋਲੇ ਹਮਸਾਏ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ हाँ जी लेकिन लगता पियो है अच्छा सर मलका बरतानिया जो है हाँ जी वो चीजें इतनी समेटा समाटी क्यों कर रही हैं उधर यार उन्होंने अपने मेहमानों के लिए रखा हुआ है सारा कुछ। वो तो उनमें माना भी निशान लान लग गए। सर मलका ने बादाम रखे ने अखरोट रखे ने मेवे रखे ने मलका ने पहलवानी दी नहीं शुरू ये आमतौर पे घरों में जब बहुत से अफराद रहते हो मिलकर तो फिर अपनी अपनी चीजों पर नाम लगा देते हैं निशान लगा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई दफा मैंने देखा है रेफ्रिजरेटर में पड़ी चीजों पर इंस्ट्रक्शंस का स्टिकर लगा होता है कि ये फलां का है हरगिज कोई और खाने की कोशिश ना करे स्पेशली फलां साहब इससे दूर रहें। तो सर आड़ू होना ते मामला बिल्कुल पुट्ठा ही है वो किसी शायद निशान नहीं लाते वो सिर्फ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਆੜੂ ਗਰਨੇਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵਾਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ मसलन क्या खराब करता है? ਬੱਕਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਮੱਝ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਐਵੇਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਧ ਡੇਗਦੀ ਐ ਕਰਕੇ क्या गिरा दी? ਕੰਧ ਜਨਾਬ ਕੰਧ क्या करते हैं? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੂੰਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ किसको? ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੇੜੇ ਕਰ ਖੋਏ ਪਏ ਆ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਬ ਰੱਖ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਏਡੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬੇਵਾ ਮਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ उनके शौहर जिंदा हैं प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबरा। ਹੈਲੋ ਇਹ ਨਾਂ ਕੌਣ ਲੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ प्रिंस फिलिप उनका नाम है ਅੱਛਾ ड्यूक ऑफ एडिनबरा उनका खिताब है। ਉਹ ਮਲਕਾ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੇਵੇ ਸਾਮ ਰੱਖਣ ਇਹ ਦੇ ਮਲਕਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਆਦੇ ਹਲੋ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਘਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਸਰ ਵੈਸੇ ਚਾਰਲਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ काम पे जाता होगा ਉਹ ਕੀ ਲੂਮਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ उसका कोई ना कोई मनसब है कोई दफ्तर है। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ हमारा प्राइम मिनिस्टर सुबह सुबह कहाँ जाता है? ਸਰ ਕਿਚਨ ਚ यार भाई नाश्ते के बाद काम पे ही जाते हैं ना। ਜੀ 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 ਆ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ देख लो वही ट्रेजेडी काम तुम समझते हो सिर्फ और सिर्फ वो जो हाथ से किया जाए जो कमी और काम का वो जो कॉन्सेप्ट है ना उससे निकलो। काम का मतलब काम होता है अब काम डिफर करता है किसी का कुछ काम होता है किसी का कुछ। ਸਰ ਮਲਕਾ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸਰ ਮਲਕਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇhtiyati ਤਦਬੀਰ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ क्या कि चवल का बच्चा चोरी कर रहा है अच्छा सर मलका ने बादाम रखे ने मेवे रखे ने अखरोट रखे ने होर की रखे है ਉਹਨੇ ਘਿਓ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਚੀਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵਾਣ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਆ ਕੌੜਾ ਤਮਾਕੂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਛਾਂਟੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਰੱਖਿਆ बड़ा कुछ रखे है मलका ने चाहिए बाहर बोर्ड ला दे ਖਾਦਾ बकिंगम करियाना पैलेस जी खबर है कि लाहौर से लंदन जाने वाले पीआईए के जहाज का बाथरूम खराब होने पर मुसाफिरों की हंगामा आ रहा है। ਯਾਰ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ सही गल पीआईए पहली एयरलाइन है जिसने खाकरोब भर्ती की है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ क्यों? ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਜੀ ਸਰ ਵੈਸੇ ਪੀਆਈਏ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? इसलिए कि मुसाफिर ज्यादा है तैयारे कम है। नहीं तो जहाज सर में वेच देन लोहे दे पा जो पहला उन्होंने वेच जैसे एयरफोर्स वाले ने वो एयरफोर्स वालों ने जो बेचा था वो उसका सत्यानाश हो चुका था। वो ऐसी खाम का ऑडिट वालों ने दोबारा उसका तस्करा कर दिया। ये बहुत पहले बिक चुका था और स्क्रैप के भाव ही बिक सकता था उसके लिए तो खरीदार ही कोई नहीं था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वो जहाज हैं जो अब स्क्रैप कर देने चाहिए। ये एयरलाइन जो दुनिया की
लीडिंग एयरलाइंस में से एक हुआ करती थी, अब ये औने पौने बेची जाएगी, क्योंकि इसे इस नहज तक पहुंचाया इसलिए गया कि इसको कौड़ियों के भाव बेचा जाए। आपने तुर्की से जहाज किराए पर ले रखे हैं, लफ्थांसा से भी ले रखे हैं, जर्मन कंपनी से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्तों में तकसीम करेंगे, स्टील मिल भी बिकेगी, PIA भी बिकेगी, और कोई बात नहीं, रेलवे भी बिके। ख्वाजा साद रफीक बेचारा जितना मर्जी जोर लगा ले, अगर इसका बिकना लिखा जा चुका है तो ये बिक के रहेगी। क्यों? हम मिसमैनेजमेंट का शिकार है, हमारी सजा यही होनी चाहिए। नहीं तो सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਣੇ ਲਾਏ ਨੇ। नहीं, जितने चाहिए वो नहीं है। जो बेस्ट मैनेजर्स है ना, ਦੁਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हर पढ़ा लिखा कंपनियां नहीं चला सकता। सीरियसली सुनो, इसके लिए मैनेजर्स होते हैं, ये मैनेजमेंट होती है। आपके बेस्ट मैनेजर्स इस वक्त बैरून मुल्क जा चुके हैं, ब्रेन ड्रेन के जरिए जा चुके हैं। यही वो लोग थे जिन्होंने PIA को दुनिया की टॉप एयरलाइंस बनाया था। आज वो दुनिया की बदतरीन एयरलाइंस। ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਰ, ਐਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ। ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? एयरबस 380। 에ਅਰਬਸ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ये फ्रेंच टेक्नोलॉजी की मिराज कहते हैं इसको। अच्छा जी, ये जी बिजनेस क्लास होंदी है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਐਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? मास्टर जी, पैसों का फर्क है ना, पैसा स्टेटस का फर्क है। अच्छा सर, 777 कैसा जहाज है? ये भी सुने बहुत आला जहाज। बहुत आला। बोइंग का मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत जहाज है, और ये एक इसका फेरा लाहौर न्यूयॉर्क ये 5 करोड़ रुपया कमाता है। एक बोइंग 777 पिछले 6 माह से कराची एयरपोर्ट पे खड़ा है। तो सर उन्हें चलाते क्यों नहीं गए? उसके लिए इंजन किराए पर बाहर से मंगवाया गया, सिर्फ 15 लाख रुपया डेली उसका किराया है इंजन का, और पिछले 15 दिन से वो एयरपोर्ट पे बड़ा खज्जल हो रहा। तो किराया पै रहा है जी, दो चीजें पड़ रही हैं, किराया अलग, डैमरेज अलग। उसके पुर्जे, उसका नेविगेशनल सिस्टम सारा निकाल कर दूसरे तैयारों में डाल दिया गया। वो खड़ा है बिल्कुल इस तरह जैसे यहाँ पे प्लानिटेरियम में नहीं खड़ा, चौबुर्जी में जहाज है। जी जी जी, वो बिल्कुल एक मॉन्यूमेंट बन के खड़ा हुआ। और कई पिंडों आंदे ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸਾਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी, खबर है कि थाईलैंड में एक शहरी को बादशाह की तस्वीर पर मुतनाज़ अल्फाज तहरीर करने के जुर्म में 6 साल कैद हो गई। देखो सर, एक थाईलैंड ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। अध्यात्म मान सिंह जी आलीजा, इन दोनों के सर कलम कर दिए जाए। ਉਹ ਘਰ ਚ ਗੰਢੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਛੁਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਟਿਆ ਜੇ ਹੈ। और क्या ये कट्टे है जनाब, यही वो प्याज कटिया उसकी मुराद ये है। ना ना दूसरा। चौबदार ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। हम जंग पर जाना चाहते हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ? ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੰਜ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ना करो, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਕਲੀ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹ। तुम अनारकली की बात करो, बादशाह नाच रहा है। आप बादशाह की बात कर रहे हैं, मैं नाच रहा हूं। अध्यात्म ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। बस चलाने वाले ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਜ? ਕਿਹੜਾ ਤਾਜ ਮਿਲਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। आलम पना, क्या बात है? आप तो जानते हैं मैं एक लिखारी हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी जिंदगी पर मैं लानत भेजना चाहता हूँ। मैं आपकी जिंदगी पर एक किताब लिखना चाहता हूँ। जी आपकी जरा नवाजी है। ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। चौबदार ਜੀ ਆਲੀ ਜਾ। शाही सवारी का इंतजाम किया जाए।
हम मछली के शिकार पे जाना चाहते हैं। ਤੇ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ कहा है अकल के अंधे शाही शिकारे का इंतजाम किया जाए। ਸ਼ਿਕਾਰਾ शिकारा की होता है? शिकारा कश्ती होती है जिस पर मछली का शिकार करते हैं। आज भी कश्मीर में आप डल झील के अंदर देखें ना तो वो कश्तियां जिनमें मछेरे शिकार करते हैं, या फूल बेचने वाली किश्तियां भी जो हैं ਜੀ ਜੀ उन्हें शिकारा कहते हैं। अच्छा सर शिकारे ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ वो क्या होता है? वो कनू कहते हैं उसको, कनू। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ? अकबर का? हाँ जी। इसने समंदर उस वक्त देखा जब इसकी उम्र तकरीबन 40 साल हो चुकी थी। गुजरात फतह हुआ तो इसने जाके समंदर देखा पहले। खुशकी ते रहा जी। हाँ तो और क्या, इन्हें वकूफ ही नहीं था इन चीजों का। बहरी बेड़ा बनाया होता मुगलों ने तो आज इस खित्ते की सियासत मुख्तलिफ होती, मिडल ईस्ट हमारा हिस्सा होता। सर एडा मोटा सी बहरी बेड़े च बह ही नहीं सकता यार। बहरी बेड़े का बेड़ा ही बह जाना एक कश्ती च बैठा सी सर, पहले तो कश्ती से डेले बाहर आए। यार इतना वजन नहीं है उसका। गोदी च चुक के देखो तुसी जरा। बस 5 मिनट कश्ती च बैठा है, कश्ती पाट गई डूब गई होगी। नहीं सर पहले फटी है फिर और फीती फीती हो गई। तेन देख के तो बहरी जहाज पीछे न मुड़ गया। ये तो ऐसे नाहल थे कि हाजियों को मक्का मुकरमा पहुंचाने के लिए पुर्तगाली जहाजरानों की मिन्नत तरले किया करते थे। जा तेरा कख न रवे नकम्या। ਉਹ ਸਾਦਕ ਤੇਰੇ ਕੋ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। आलम पना क्या बात है? हमने सुना है आप हाथियों पे भी काबू पा लेते थे। हाथी क्या चीज है? हम तो खूंखार शेरों पर भी काबू डाल लेते हैं। हाथी ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਾ। डोंगे दे मुंह वाला। किसके मुंह वाला? डोंगे दे मुंह वाला जी। तो तुम ही मेरे नाल ही है कि घड़ी ठीक कराउण आया इत्थे। ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। 24 ਘੰਟੇ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਲਾਦੀਨ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। वैसे तुम्हारी टोपी जो है ना ये अलादीन की टोपी लगती है। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਹੈਲੋ ਹੋਵੇ ਟੋਪੀ ਲਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਿਰਾਗ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਗੜੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਆਲਮਪੁਰਾ ਨੇ ਟੋਪੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਦੇਜ ਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇਜ ਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।